சேர்ந்து செபிப்போம். பரலோகத்தின் பிதாவே, மக்கள் நாங்கள் நன்றி செலுத்துறோம். இந்த மாலை நேரத்தில் நாங்கள் எல்லோருமா சேர்ந்து மகிமைப்படுத்தும்படி ஆய் கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றி இயேசுவே. సంబరాలు సంబరాలు చేసేద్దామా, సంబరాలు యేసు உலகத்தில் வந்த பிற்பாடு यीशु मसीह दुनिया में आने के बाद எத்தனையோ பேருக்கு கர்த்தர் சுகத்தை கொடுத்தார். कितने ही लोगों को परमेश्वर ने चंगाई दी. பரலோகத்தில் எந்த விதமான வியாதி கிடையாது, परलोक में किसी प्रकार का भी எந்த விதமான வியாதி கிடையாது, किसी प्रकार का भी रोग எந்த விதமான பிரச்சனையும் கிடையாது. किसी प्रकार की அந்த परेशानी தேவன் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் இறங்கி வந்த நாள் தான் கிறிஸ்துமஸ் நாள். बहुत सारे ऐसे श्लोक है जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है. अनेक श्लोकங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி தான் சொல்லுகிறது. आज से 2023 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आपके लिए मेरे लिए पैदा हुआ. प्यारे लोग, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து 2023 வருடங்களுக்கு முன்பதாக இந்த உலகத்திலே மனிதனுக்காக பிறந்தார். பிரியமானவர், ஆலோசனை கர்த்தர், வல்லமை உள்ள தேவன், நித்திய பிதா, சமாதான பிரபு. You may facing. आपकी जिंदगियों में कुछ भी परेशानियों से जूझ रहे हो. You may facing a lot of things in this world. आपकी जिंदगी में परेशानियां होगी, Tension, sickness, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, and lot of loan credits. But you when you think Jesus Christ, Lord, come into my life. Beautiful Savior, glorious God. மனிதனாய் வந்து பிறந்தது கிறிஸ்துமஸ் நன்னாள் மட்டும்தான். परमेश्वर खुद मनुष्य बन के पैदा हुआ, वो सिर्फ जो क्रिसमस के दिन में है. प्यारे लोग, இதுல எந்த கடவுளுமே மனிதனா வந்து பிறக்கவில்லை. இயேசு கிறிஸ்து ஒருத்தர் தான் மனிதனாய் இந்த உலகத்தில் வந்து அவதரித்தார். உங்களை ரட்சிக்க முடியாது. आपका कोशिश आपको बचाने, ஆனால் இயேசு உங்களை ரட்சிக்க கூடும். लेकिन यीशु आपको बचा. प्रभु यीशु
यीशु मसीह आपको, मुझको, सारे दुनिया के लोगों को शांति देना चाहता है। अगर प्रभु यीशु को आज अपने जीवन में आप ग्रहण करोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा और यीशु मसीह का सच्चा शांति को आप पाने पाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु जो है पवित्र खुदा है और इसीलिए वो जो है एक कुंवारी के गर्भ से जो है इस संसार में जन्म लिया। ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர் பரிசுத்தமுள்ள தெய்வம், ஆகவேதான் அவர் கன்னியின் வயிற்றிலே அவர் வந்து பிறந்தார்। जो 700 साल पहले नबियों ने जो बात कही थी वो बात जो है पूरा हो गया। 700 வருடங்களுக்கு முன்பதாக தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாய் சொல்லப்பட்ட காரியங்கள் இந்த நாட்களில் நிறைவேறினது। கிறிஸ்மஸ் என்பது இந்த உலகம் முழுவதிலும் கொண்டாடப்படுகிறதான ஒரு பண்டிகை। क्रिसमस जो है पूरे संसार में मनाया जाने वाला एक पर्व है। पराक्रम में परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய இந்த நற்செய்தியை இந்த உலகம் முழுவதிலும் இன்றைக்கு கிறிஸ்துவர்கள் அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம், ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே பாலகனாக பிறந்த செய்திதான் ஆண்டவருடைய பிறப்பின் நற்செய்தி। நமக்காகவே ஒரு பாலகன் பிறந்தார், हमारे लिए ही एक पुत्र पैदा हुआ, நமக்காகவே ஒரு குமாரன் சிலுவையிலே கொடுக்கப்பட்டார், हमारे लिए ही एक बेटा क्रूस पर दिया गया। கர்த்தருடைய அரசாங்கம் எல்லாம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கிறது। परमेश्वर की प्रभुता उनके कांधों पर है। அவர் அதிசயமான தேவன், अद्भुत करता परमेश्वर है। அவர் சர்வ வல்லமுள்ள தேவன், वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। அவர் சமாதானத்தின் அரசர், वो समाधान का प्रभु है। அவர் நித்திய பிதா। वो निरंतर का पिता। ईश्वर इस समय में भी आपको बुला रहे நீ हैं। அவருடைய மகனாய் இருக்கும்படியாக கர்த்தர் உன்னை அழைக்கிறார்। आपको उनके पुत्र या पुत्री के रूप में वो अपनाने के लिए बुला அவர் रहे சர்வ हैं। வல்லமுள்ள தேவன்। वो सर्वव्यापी ஆசீர்வதித்தார்। அவர் கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துவோம்। ஆமென்। ஊழியத்தில் உதவி செய்த, உதவி செய்த எல்லா மக்களுக்காக நன்றியோடு கர்த்தரை துதிக்கிறேன்। நம்ம எல்லாரும் ஒரே கலர்ல ட்ரெஸ் போடுற காரணம் என்னன்னு சொன்னா, நம்ம எல்லாம் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் என்பது என்ன செய்யறோம், வெளிப்படுத்தி காட்டணும் கொஞ்சம் பேருக்கு। சர்வ உன்னத மகிமா ஸ்தலமுலோ தேவனுக்கு
స్తుతి మహిమ సకల సరాసర సృష్టిలో సమాధానము குதூகல கொண்டாட்டமே நம்ம வாழ்க்கையில் கொண்டாட்டமே. எல்லா துதி கனமாக மோக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். से 2023 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आपके लिए और मेरे लिए पैदा हुआ. 2023 வருடங்களுக்கு முன்பதாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் வந்து பிறந்தார். मेरे बहनों मसीह जी मेरा दुनिया में आया. सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया. सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया. ஜனங்களை பார்க்க முடியும். कितना ही पैसों को कमाने से भी वो पैसा उनके जीवन को जान को बचा नहीं सकता. எவ்வளவு பணங்களை சம்பாதித்தாலும் அவங்களுடைய உயிரை அந்த பணங்கள் காப்பாற்றுவதில்லை. निशब्दम मरिंद निशब्दम निशब्दम मरिंद निशब्दम क्रिस्टनालो पुट्टिन रोजु ना क्रिसमस पंडिग रोजु निज क्रिसमस पंडिग रोजु. வெளிப்படுத்தின ஒரு நாள் தான் கிறிஸ்துமஸ் நன்னாள். परमेश्वर मनुष्य से अपने प्रेम को व्यक्त किया हुआ वह दिन ही
அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த நல்ல நாளுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம். இந்த பகுதியில் வாழும் இஸ்ரவேல் குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். அப்படியே மக்கள் எல்லாருக்காக ஜெபம் பண்ணுகிறோம். டேவிட் குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்களுக்கு காவல் ஸ்டேஷன், போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்துருப்போம், அவங்களுக்காக கூட ஜெபிக்கிறோம். எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்காக ஜெபிக்கிறோம். அந்தமான் நிக்கோபார் ஆண்டவர் மினிஸ்ட்ரிக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரை. இங்கே இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் நாங்கள் மனதார எங்கள் சபையின் சார்பில் நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். கர்த்தாவை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். இந்த இடத்துல வந்து விதைத்திருக்கிறோம். பல நாட்கள் பின் பலனை கொடுக்க போகிறதுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம். கர்த்தாவை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எங்களோட ஊழியத்தில் கலந்து கொண்டு ஒவ்வொரு சிறியோர் பிள்ளைகள் எல்லாரையும் ஆசீர்வதியும். துதிகன மகிமை மக்கை செலுத்துகிறோம். மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென். We want to wish you a Merry Christmas. We want to wish you a Merry Christmas. We want to wish you. எங்களுடைய மாரநாதா ராஜாவின் சபையார் உங்களுக்காக ஒரு நிகழ்ச்சியை ஆயத்தமாக்கி இருக்கிறார்கள். வருகின்ற டிசம்பர் மாதம் 24ஆம் தேதி மாலை 5:30 மணி அளவிலே அந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பமாகும். Wow.
पिछले सारे दिनों में परमेश्वर हमारे साथ में था। ये 2023 साल में एक क्रिसमस के त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाने के लिए मारनाथा किंग्स चर्च को परमेश्वर ने कृपा दिया। ये दिसंबर महीना में पिछले 3 सप्ताह भी जो है हम बहुत सारे जगहों में जाकर के यीशु मसीह के पैदाइश की खुशखबरी को सुनाने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। இந்த 2023ஆவது வருடத்துல இந்த கிறிஸ்மஸ் அந்த கொண்டாட்டத்தை மிகவும் கோலாகலமாக கொண்டாடத்தக்க கிருபையை தேவன் இந்த மாநாத ராஜாவின் சபைக்கு கொடுத்திருக்கிறார்। आज से 2023 साल पहले यीशु मसीह परमेश्वर पिता हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं, आपके पुत्र यीशु के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के सारे कार्यक्रमों में आपका अनुग्रह होने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। लगातार हमें चलाइए, हमारे भविष्य मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हम सब बैठ जाएंगे, प्रभु के नाम की महिमा हो। लगातार अभी हम जो है अगले मारनाथा फैमिलीज की ओर से आप सबको हम स्वागत करते हैं। प्रभु आपका आशीर्वाद सब जो है अंत तक रह के प्रोग्राम को देखते हैं। थैंक यू पास्टर जी। आज के इस सुंदर दिन में, आज के इस खूबसूरत दिन में हम मारनाथा किंग्स चर्च के सभी लोग आपका स्वागत करते हैं। ये दिन बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, क्योंकि ये दिन है क्रिसमस का। ये क्रिसमस सिर्फ ईसाइयों का नहीं है, बल्कि ये क्रिसमस सारे सृष्टि के लोगों के लिए है। Bethlehem is just a sleepy town, but it's the place salvation's coming down. In a little stable, simple as can be, Mary sings a welcome song to the King of Kings. What a wonderful night! Jesus Christ is born. The star is shining so bright. Come let us adore. Glory to God in the highest, peace to all of us. What a wonderful Savior, Jesus. Bethlehem is baby Jesus down. God with us has found a humble home. In a little stable, in my little heart. When you find God's saving grace, that's when Christmas starts. What a wonderful night! Jesus Christ is born. The star is shining so bright. Come let us adore. Glory to God in the highest, peace to all of us. What a wonderful Savior, Jesus. Praise the Lord. John 3 verse 16 says, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. We, the children of Maranatha King's Church, welcome you all and prosperous New Year 2024. Praise the Lord and God bless you. इस डांस के बोल है जोगनिया। बड़े सुंदर प्रोग्राम पेश किया जाएगा।
गई बादरिया उसके लगे जल्दी आजा ये हो गई बादरिया जोगनी 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 मैं यीशु की जोगनिया जोगनी 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 मैं यीशु की जोगनिया मैं उसकी दुल्हनिया मैं हो गई बादरिया मैं उसकी दुल्हनिया मैं हो गई बादरिया मैं उसकी दुल्हनिया मैं हो गई बादरिया मैं उसकी दुल्हनिया मैं हो गई बादरिया। MKC Youth Girls.
മഴയിലും വെയിലിലും കണ്ടു, ഇരവിലും പകലിലും കണ്ടു, നാഥ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടു. കരുണയായി കടലിലും കണ്ടു, വചനമായി തിരയിലും കണ്ടു, നാഥ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടു. കൂരിരുൾ നോവിലും ഇടറുമെൻ വഴിയിലും നാഥ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടു. യേശുനാഥ നിന്നെ കണ്ടു. വിരിയുമീ തളിലും കണ്ടു, എരിയുമീ തിരയിലും കണ്ടു, എന്നിലെ ശ്വാസമായി നീ നിറഞ്ഞു, എന്നാത്മാവിൻ നാളമായി നീ തെളിഞ്ഞു. ഈ നാദത്തിലും അതിൻ രൂപത്തിലും മഴവില്ലിലും തിങ്കളിൻ ചന്തത്തിലും യേശുനാഥ നിന്നെ കണ്ടു. മഴയിലും വെയിലിലും കണ്ടു, ഇരവിലും പകലിലും കണ്ടു, നാഥ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടു. आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन स्वयं परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था।
सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना नहीं हुई। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। फिर परमेश्वर ने कहा, अब हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। ये पहला पुरुष था। परमेश्वर ने उसका नाम रखा आदम। इसी तरह परमेश्वर ने स्त्री को भी बनाया। उसका नाम रखा गया हव्वा। तब परमेश्वर ने देखा कि जो कुछ बनाया गया है वो सब बहुत अच्छा है, और ये आज्ञा दी, आदम, तू इस वाटिका के सब वृक्षों का फल निडर होकर खा सकता है, लेकिन भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। परंतु एक दिन शैतान सांप के रूप में हव्वा के पास आया और उसे फुसला कर कहा, ना ना ना, ये फल खाने से तुम बिल्कुल नहीं मरोगे, बल्कि परमेश्वर खुद जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। हव्वा, खाओ खाओ खाओ। हव्वा ने देखा कि फल देखने में सुंदर है, तो उसे लगा कि खाने में भी अच्छा होगा और बुद्धि देने वाला भी होगा। उसने फल तोड़कर खा लिया और अपने पति आदम को भी दिया। उसने भी खाया। शाम के समय वाटिका में परमेश्वर के आने की आवाज सुनकर आदम और हव्वा वृक्षों में छुप गए। परमेश्वर ने आदम को पुकारा, आदम, आदम, तू कहां है? मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया। मैं नंगा था इसलिए छिप गया। तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या जिस वृक्ष का फल खाने से मैंने तुझे मना किया था तूने उसी का फल खाया है? जिस स्त्री को तूने मेरी साथी बनाया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। फिर परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तेरे बच्चे पैदा करने की पीड़ा बहुत बढ़ जाएगी। तू दर्द के साथ बच्चे को जन्म देगी। आदम से परमेश्वर ने कहा, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष का फल खाने के लिए मैंने तुझे मना किया था उसी को तूने खाया है, इसलिए अब से ये भूमि भी तेरे कारण शापित है। सारा जीवन कड़ी मेहनत करने के बाद ही तू भूमि की उपज खा सकेगा। फिर परमेश्वर ने उन्हें आदम की वाटिका से निकाल दिया। इस तरह सृष्टि के पहले पुरुष और स्त्री यानी कि आदम और हव्वा द्वारा परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के पाप के कारण संसार में पाप का प्रवेश हुआ और इस तरह सब मनुष्य पापी हो गए। पाप से ही मृत्यु आई। इस तरह एक न एक दिन सभी को मरना ही है। परमेश्वर ने देखा कि जैसे जैसे मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ते गए उनकी दुष्टता भी बढ़ती गई। उनके मन हमेशा दुष्टता से ही भरे रहते हैं।
धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। सब भटक गई, सब के सब निकम्मे बन गई। सच्चे परमेश्वर को जानते हुए भी मनुष्यों ने ना तो उसकी आराधना की, ना ही उसका धन्यवाद किया। उन्होंने अविनाशी परमेश्वर को मनुष्य, पशु पक्षी या रेंगने वाले जानवरों की मूर्ति का रूप दे दिया। वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, व्यभिचार, लोभ और बैर भाव से भर गए। वे डाह, हत्या, झगड़े, छल और बुरी बुरी भावनाओं से भर गए। परमेश्वर ने पाप के प्रतिफल के रूप में उन्हें मृत्यु का शाप दे दिया। इसीलिए मनुष्य अपने जीवन भर मृत्यु के डर से जकड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे अंत में मरना ही है। परमेश्वर ने निर्धारित किया है कि पाप के कारण मनुष्य को एक बार मरना होगा और उसके बाद उसको नरक जाना होगा। परमेश्वर अपने बनाए हुए मनुष्य से प्रेम करता है और उसने मनुष्यों को उनकी पापी दशा से उद्धार देने के लिए एक योजना बनाई। बहुत साल पहले से अपने भक्तों के द्वारा परमेश्वर ने वचन दिया था कि वो संसार की मुक्तिदाता को भेजेगा। आज से 2023 साल पहले इस दुनिया का उद्धारकर्ता यीशु एक कुंवारी मरियम के गर्भ से पैदा हुआ। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। यह किस प्रकार का अभिवादन है? हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। यह कैसे होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हे मेरी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यीशु
यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हे मेरे परमेश्वर, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर। मैं आज ही जाकर मरियम को अपने घर ले आऊंगा। उन दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब कुरिनियुस सूरिया का हाकिम था। सुनो सुनो सुनो, कान खोल कर सुनो, सुनो सुनो सुनो, कान खोल कर सुनो। औगुस्तुस कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली है कि सारे जगत के लोग अपने अपने नगर को जाकर अपना अपना नाम लिखाए। सुनो सुनो सुनो, कान खोल कर सुनो। और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। आपका नाम? मैं यूसुफ और ये मेरी पत्नी मरियम। करीब है बस नगर हमारा, आपस में यूं कहते हैं। और फिर मरियम और यूसुफ सराय में जगह ढूंढने के लिए जाते हैं। करीब है बस नगर हमारा, आपस में यूं कहते हैं। कहिए भाई, क्या काम है? मैं यूसुफ और ये मेरी पत्नी मरियम, हम बहुत दूर से आए हैं और मेरी पत्नी गर्भवती है। क्या हमें रहने के लिए आपके सराय में थोड़ी जगह मिल सकती है? नहीं भाई, मेरे सराय में कोई जगह खाली नहीं है, पर हाँ, एक गौशाला है, आप चाहे तो वहाँ रुक सकते हैं। सफर के विपदा मरियम यूसुफ सहते हैं और कहते हैं। और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। आज की रात तो बहुत ठंड है और देखो, तारे भी कितनी सुंदरता से चमक रहे हैं। हाँ हाँ, कितनी सुंदरता से चमक रहे हैं। लगता है किसी महान राजा का जन्म हुआ है। मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है, शांति हो। आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें।
चरवाहे चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना। चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। फिर यीशु परमेश्वर की कृपा और मनुष्य की दया में बड़े हुए। परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने पाप और मृत्यु से लोगों को बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है। यीशु ने कहा, अपने अपने पापों पर पश्चाताप करो और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जल्द ही आ रहा है। मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मैं धर्मियों के लिए नहीं आया बल्कि पापियों के लिए आया हूं, ताकि उनका मन पापों से फिर सके। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को पापियों का नाश करने नहीं बल्कि पापियों को बचाने के लिए भेजा। इसलिए जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति संसार में आई है, किंतु मनुष्यों ने ज्योति से अंधेरा अधिक पसंद किया। यीशु जहां भी जाता लोग सब तरह की बीमारों को, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, जिन्हें मिर्गी और लकड़ी का रोग था, उसके पास ले आया करते थे। यीशु हर तरह की बीमारों को चंगा किया करता था। एक दिन एक आदमी ने यीशु के पास आकर उससे विनती की, प्रभु प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मेरे पुत्र को बचा लीजिए प्रभु, ये मेरा इकलौता पुत्र है। अपने पुत्र को मेरे पास ला। तब यीशु ने उसे डांटा और दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई और वो लड़का उसी समय अच्छा हो गया। चेहरा भी ठीक हो गया, ये कितना अद्भुत है। यीशु रुकिए प्रभु, रुकिए प्रभु, उसे बुलाओ। यीशु रुकिए, यीशु यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। बोलो, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? प्रभु मैं देखना चाहता हूं। देखने लगो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पा चुका और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। इन बातों को सुनकर अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आने वाला है कि जितने कब्रों में हैं वे मेरा शब्द सुनकर बाहर निकल आएंगे। जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है
वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश, और जिन्होंने बुराई की है वे नरक का दंड पाने के लिए जी उठेंगे। जिन लोगों ने उसका काम देखा और उसका वचन सुना, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ ने धर्म शिक्षकों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। धर्म शिक्षकों ने आपस में कहा, ऐसा कब तक चलेगा? यह आदमी तो बहुत से अद्भुत काम दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे। उन्होंने यीशु को मार डालने के लिए षड्यंत्र रचा। गिरफ्तार करो, काम तमाम कर दो पिलातुस। मारो, मारो, ठीक से मारो। उसको क्रूस पर चढ़ा दो, उसका काम जवान कर। मारो, मारो उसको, क्रूस पर चढ़ाओ। मारो उसको, क्रूस पर चढ़ाओ। Oh Father, please forgive them. इन्हें माफ कर दो, इन्हें पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। I thirst. इतना कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। सच में यीशु संसार में आया था हमें पापों से बचाने के लिए। ये जो कुछ भी हुआ वो सब हमारे लिए था। यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे बदले पाप का दंड भी सहा। वो हमारे ही अपराधों के कारण मारा गया और हमारे ही कुकर्मों के कारण कुचला गया। जो दंड उसने भोगा उसके द्वारा ही हमें मुक्ति मिली और उसके जख्मों के बदले हमें चंगाई मिली। जो यीशु पर विश्वास करता है वो यीशु के लहू के द्वारा पापों की क्षमा पाता है और अनंत जीवन उसी का है। यीशु को कब्र में रखने के तीसरे दिन की भोर को कुछ स्त्रियां सुगंधित वस्तुएं लेकर यीशु की कब्र पर गईं, ताकि उस देश की रीति रिवाज के अनुसार यीशु की लाश पर उन्हें लगा सकें। उन्होंने देखा कि कब्र का पत्थर हटा हुआ है और अंदर जाकर देखा कि यीशु की लोथ वहां नहीं है, सिर्फ उसका कपड़ा पड़ा हुआ है। तभी अचानक दो स्वर्गदूत चमकीले वस्त्र पहने हुए उनके पास आकर खड़े हुए और कहा, तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं है परंतु जी उठा है। याद करो जो उसने गलील में कहा था, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। यीशु मसीह अब भी जीवित है। वो इस संसार के अंत में फिर आएगा और इस संसार के लोग यीशु को बड़ी महिमा और सामर्थ के साथ बादलों में आने देखेंगे। जो पृथ्वी पर रहते हुए यीशु पर विश्वास करते थे, वे अपने विश्वास के द्वारा पवित्र ठहराए जा चुके हैं और परमेश्वर के साथ उनका मेल मिलाप है। वे हमेशा के स्वर्ग राज्य में अनंत महिमा में प्रवेश करेंगे।
शांतिपूर्वक बैठे और आगे के कार्यक्रमों का दुख बताएं। Thank you and over to Sister Rebecca। धन्यवाद। अब सिस्टर रेबेका आपसे जुड़ेंगे। పాపాన్ని రూపుమాప నర రూపం ధరించి
हुआ दीदारी वचन खुलागा जन्मा जमीन पे बेटा खुलागा हुआ दीदारी वचन खुलागा जन्मा जमीन पे बेटा खुलागा सारे जहां से कुरान ने किया ऐसा
चाहे तो अपना मोबाइल में जो लाइट है उसको जला सकते हैं। Jesus, light of the world, shine on me, shine on me, shine, Jesus, shine, fill this land with the Father's glory, please be replaced, set your hearts on fire, please be replaced, set your hearts on fire, glory of flow, let the nation decree mercy, send forth your word, Lord, and them यीशु तेरा प्रकाश सारे भूमंडल की ज्योति लोरी है, स्वर्ग सकल की विभूति है, ज्योतिर्मान, तेरे दम से परोसत मन को दिव्य लोक, दिन तू मेरे अंगन मन को प्रीत Shine, Jesus, shine, fill this land with the Father's glory, please be replaced, set your hearts on fire, glory will flow, let the nations decree their mercy, send forth your word, Lord, and let there be light. मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय में एक मुख्य हमारे अपोस्टल जी के बारे कहें तो इज द मैन ऑफ विजन, इज द मैन ऑफ मिशन, इज द मैन ऑफ प्रेयर। घुटनों में रह करके उन्होंने ये सब कुछ बनवाया है। और उस प्यारे सेवक को जो हम जिसको बहुत से लोग जो उनको डैडी बोलते हैं, बहुत से बड़े बड़े लोग उनको डैडी बोलते हैं। मैं इस समय अपोस्टल जी को स्वागत करना चाहता हूँ हमारे बीच में, हमारे चर्च से हमारे अंदर मदील नैया जी आकर के उनको इन बुके के द्वारा उनको स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। और आज हमारे बीच में द गेस्ट ऑफ ऑनर है श्री शाहुल हमीद जी, जिनको हम लोग सब जानते हैं, पूरा पोर्टलेट जानता है, टमन को वायलेंस जानता है, सिटी चैनल को चलाते हैं। इंद्रधनुष से आरंभ हुआ, आज सिटी चैनल है, बहुत कुछ है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिंगर, आज भी अपने आवाज को बरकरार रखता है। आप उनको कभी गाना सुन के देखिए। मैं चाहूंगा कि आने वाले दिन में यीशु के लिए बताएं। आमीन, हालेलुया। आइए जोरदार तालियों के साथ में शाहुल अहमद जी का स्वागत करेंगे। ओके के साथ में और उनकी प्यारी पत्नी जी उनके साथ आए हुए हैं। रिसेंटली वो बहुत सारे जगहों में जाते हैं, दोनों मिलके फेसबुक पे उनका बहुत सारा फोटोज देखते हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ उनको भी स्वागत करें। Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now hear the angels sing, listen what they say.
Christmas Day. Trumpets sound, the angels say, listen what they say. That man will live forever because of Christmas Day. Because of Christmas Day. Because of Christmas Day. दुनिया का रोशनी यीशु मेरे दिल में पैदा हुआ. दुनिया का रोशनी यीशु जीवन बदल गया. यीशु यीशु मेरे में जिंदा हमारे अशोकर कालத்திலே अशोक के दिनों में அசோகர் நடந்து வந்திருந்தார். अशोक चल के आता था. அவரோடு கூட சில அமைச்சர்கள் வந்து கொண்டிருந்தார்கள். उनके साथ में कुछ मंत्री लोग चल के आते थे. ஒரு நாள் ஒரு சாகுவை பார்த்தாலே கொண்டு வா. एक चार सर को लेके आना है. சிங்கத்தின் தலை கொண்டு வா. सिंह का शेर को लेकर शेर का जो மான் தலை கொண்டு வா. सर को लेके आओ और हिरण का सर को लेके आओ. मनुष्य तले கொண்டு வா. और मनुष्य का सिर को भी लेके आओ. ஆட்டு தலையை கொண்டு வா. और एक बकरा का सिर को भी लेके आओ. நான் மன்னன். मैं एक राजा हूं. அதிகாரம் கொடுக்கிறேன். मैं आपको अधिकार देता हूं. ये ஒருமை मनुष्य का सिर. இந்த உலகத்தில் உயிர் இருக்கிறதுக்கு நான் வேல்யூ. ये दुनिया में जिंदा रहने तक ही उसका वैल्यू है. இந்த மிருகத்தின் தலையெல்லாம் உடனே விலை போயிடுச்சு. மனுஷனுக்கு தலை வேல்யூ கிடையாது. ये जो है पशुओं का सिर जो है उसका जो है कीमत दे दी. உலகத்திலே உன் தலை இருக்கும்போது ये दुनिया में आपका सर உன் ஜீவன் இருக்கும்போது आपका जीवन रहता அது 40 வயசுக்குள்ள 40 வருஷம் வந்தா உனக்குள்ள ஒரு சரித்திரமே முடிவடையுது. அதுக்குள்ள ஏதாச்சும் ஒரு காரியத்தை சமுதாயத்துக்கு அல்லது கடவுளுக்கு அல்லது உன்னுடைய மக்களுக்கு நீ செய்ய. 40 उम्र के अंदर में आपके समुदाय के लिए, प्रभु के लिए, आपके लोगों के लिए आप कुछ करना है. எனக்கு அருமையானவர்களே, मेरे प्यारे लोगों, நீங்கள் நான் இந்த உலகத்தில் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் வேல்யூ உள்ளவர். आप और हम इस दुनिया में जिंदा है तब तक वैल्यू है. அதுக்கப்புறம் ஒண்ணு வேல்யூ கிடையாது. उसके बाद कोई वैल्यू नहीं. ஆனா ஒருவரை குறித்து நான் சொல்ல போறேன். लेकिन एक जन के बारे में बोल सकता हूं. இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தில் பிறந்தபோது प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में पैदा हुआ, எல்லா சிருஷ்டிக்கும் வேலை செய்ய ஆரம்பித்தது. सारे सृष्टि काम करने लगे. பரலோகத்தில் தேவதூதர் வேலை செய்ய ஆரம்பித்தார்கள். स्वर्ग में स्वर्गदूत काम करने लगे. மரங்கள் களி கூர்ந்து மகிழ்ந்தது. और जो है நட்சத்திரங்கள் இடம் மாறினது. और नक्षत्र जगह बदले. எல்லாரும் மிக சந்தோஷம் அடைந்தார்கள். सभी लोग बहुत ही खुश हो. Because the Savior is born. இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த நாள் சந்தோஷமான நாள். यीशु मसीह मुक्तिदाता के रूप में पैदा हुआ, वो दिन बहुत ही खुशी का था. மீட்பர்கள் வணங்கினார்கள். और सारे चरवाहे लोग இந்த காலையில் இந்த இடத்துல பிரசங்கம் பண்ண 4 பேர் லூக்கா சுவிசேஷத்திலே சிமியோன் பாடினார், மரியா பாடினார், சகரியா பாடினார், தேவதூதர்கள் ஆண்டவர் இயேசுவை குறித்து பாட்டு பாடினார். स्वर्गदूत लोग यीशु मसीह के बारे में गाने लगे. இவ்வளவு ப்ரோகிராம் கிட்டத்தட்ட 17 குரூப்ஸ் நம்முடைய मारनाथा राजा सवेरे 17 वीक्स வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறது. लगभग 17 तरह का ग्रुप जो है हमारे मारनाथा எல்லாரும் அவங்க பொறுப்புல இருந்து வேலை செய்து கொண்டு they are not skilled. இங்க இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் யாருமே பெருசா கத்துக்கொண்டவங்க எல்லாம் கத்துக்குட்டி தான். ஆனா ஏதோ தெரிஞ்சது செய்யறாங்க. தெரிஞ்சவங்க स्किल्लाना पीपल यू आर वेलकम टू आवर फेडरेशन. हमारे लोग जो है जो जानते उसको कर रहे हैं. अगर आप में से कोई स्किलफुल है, कलाकार है, तो आप आ सकते हैं. தேவ சம்பவத்தை சொல்லி முடிச்சு விடுறேன். एक संभव को बोलकर समाप्त करो. எல்லாரும் இயேசுவை வணங்கும்படிக்காக போனார்கள். सब लोग இயேசுவை பிறப்பு ஆவி முதற்கொண்டு அறிவிக்கப்பட்டது. यीशु का पैदाइश को जो पहले से बताया. ஏவாள் காயினை பெற்ற பின்பு கர்த்தரால் ஒரு மனுஷனை பெற்றேன் என்று சொல்லி அதுக்கப்புறம்
இந்த காயின் பொல்லாதவனாய் மாறிட்டான். एवा जो है एक बेटे को पैदा करने के बाद तो प्रभु से पाई ரட்சகர் பிறப்பார் என்று சொல்லி எல்லாரும் எதிர்பார்ப்பு. एक मुक्तिदाता पैदा होगा बोल के सब जो चाहते थे. ஆனால் மரியாள் மூலமாக ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து உலகத்திலே வந்தார். लेकिन मरियम के गर्भ से ஆண்டவர் சொன்னார் யாருன்னு சொல்லிட்டு இயேசுவை பார்த்தால் மட்டுமே நமக்கு புரியும். यीशु को देखने से प्रभु कौन है बोल के हम समझ सकते हैं. இப்போ யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. अभी युद्ध हो रहे हैं. சொல்ல முடியாது இந்த யுத்தம் மூன்றாவது உலக மகா யுத்தமாய் மாறக்கூடும். हो सकता है कि ये जो युद्ध है तीसरा विश्व महायुद्ध बन सकता है. உலக மகா யுத்தத்துக்கு காரணம் யார் தெரியுங்களா? दूसरे महायुद्ध का कारण कौन है पता है? हिटलर அடாப்ட் ஹிட்லர்ங்க ஒரு மனுஷன் தான் இரண்டாம் உலக மகா யுத்தத்துக்கு காரணம். அவனை பார்த்தா தெய்வத்தை அல்ல பிசாசையே பார்க்கறான். हिटलर को देखते समय लोग शैतान को देख रहे हैं. அவ்வளவு லட்ச மக்கள் கணக்கிலே அவன் கொலை செய்து மக்களை அழித்தார். ऐसे हजारों लोग को जो है इसने मार. ஆண்டவர் என்று சொன்னால் யார் என்பதை குறித்து பார்க்கும்போது இயேசு இந்த உலகத்திலே வந்தபோது ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை அறிந்து கொள்ளும். बच्चे लोग प्रोग्राम करें, मम्मी डैडी से हम निवेदन करते जितने भी बच्चे लोग प्रोग्राम करें सबको ऊपर भेजिए. सारे बच्चे लोग कॉस्ट्यूम के साथ सब लोग ऊपर आ जाए. टेबल के नजदीक बच जाओ बच्चे लोग. हम सब खड़े हो जाएंगे. समय कभी എല്ലാവർക്കും हमारे जो आज बनारस किंग्स मिनिस्ट्री की ओर से मुझे और हमारे धर्मपत्नी को यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर के हैसियत से बुलाया है. मैं फास्टर अरुणराज जी को और उनके तमाम बनारस किंग्स मिनिस्ट्री के जितने भी उनके जो बिलीवर्स और फॉलोअर्स हैं उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देते हुए आप सबको हैप्पी 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 क्रिसमस और एडवांस हैप्पी न्यू ईयर. और जैसे आज हमारे जो फादर ने यहाँ पर कहा था, एक अशोक जी का जो स्टोरी बोला था 100% सच्चाई है. तो मैं कम से कम आज के दिन आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इंक्लूडिंग मी एंड माई वाइफ कि अगर दुनिया में हम आए हैं तो कम से कम अगर हम जाने के बाद हर एक को मतलब आना है, एक दिन जाना है. जाने के बाद अगर 4 लोग मतलब दिल से अगर हम हमारे मतलब जाने पर अगर मतलब आज भी प्रयास करते हैं, फील करते हैं, तो आप सोच लीजिए कि दुनिया में आकर आप लोग ने जीत लिया. मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके आप लोग दूसरों को मदद कीजिए, दूसरों को हेल्प कीजिए. क्योंकि हम एक ऐसी जगह में आज खड़े हैं कि जीसस जी का मतलब जो है जीसस क्रिस्ट का मतलब रात 12 बजे मतलब जो है जन्मदिन है. तो आज के दिन से कम हम एक प्रतिज्ञा करें कि आने वाले दिन से मतलब हम लोग जो है भाईचारे के साथ प्यार से हर एक को मदद करें. हमारे पास अगर 10 रुपया है तो कम से कम 2 रुपया दूसरों को देकर मदद करने का एक प्रयास करें और सबको एक दूसरे को भाईचारे के साथ. बहुत बहुत धन्यवाद फास्टर सर, आपने हमें यहाँ पर बुलाया, आपने हमें मतलब जो है इस लायक समझकर हमें मौका दिया. और ऐसे वार्ड काउंसलर मैं आप लोगों का हर वक्त हर पल मैं आप लोगों के साथ रहूँगा. हमसे जो हो सके आप जो है हमको मतलब जो हमसे आप मतलब रिक्वेस्ट कीजिए, बोलिए, हमसे जो हो सके हम आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार हैं. बहुत बहुत शुक्रिया, फिर एक बार धन्यवाद, फिर एक बार हैप्पी क्रिसमस टू वन एंड ऑल. पूरे एड्रेस में जितने फुटवेयर में अंडमान निकोबार में और पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं आप सबके लिए. और फादर ने जो है हमें एक ऑफरिंग देकर हमें एक उसमें लिखने को रहा था, मैं उसमें लिखा है. मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरे विश्व के पूरे दुनिया के जितने भी लोग हैं सबके मतलब जो परिवार के सारे लोग हैं, पूरे दुनिया के लोगों के लिए आप उनके सबके लिए मतलब जो आप मतलब प्रे कीजिए, जिसमें मैं भी हूँ, मेरे फैमिली पे हम सब हैं. सबके लिए मतलब सबके अच्छा सेहत के लिए, अच्छा तंदुरुस्ती के लिए, अच्छा दिन के लिए आप मतलब जो है दुआ मतलब प्रेयर कीजिए. बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद.
செய்து கொண்டு வருகிறார். It's very good thing. And also he has promised that நம்ம ஃபுட்பாத் ரோட கொஞ்சம் நல்லா சரி பண்ணி கொடுக்கறேன்னு சொல்லி ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காரு. संडे में प्रॉमिस किया कि हमारे फुटपाथ को बढ़िया से बना के देंगे बोल के हम लोग ताली बजा के ரோड மக்களே ரோड जोरदार ताली बजा மூணு பேர் படிக்கட்ட வந்து முன்னாடி இருக்காங்க. அந்த ரோடு நமக்காக செய்யப்பட்ட ரோடு. रोड जो है हमारे लिए बनाया गया रोड. அது மட்டும் இல்ல சிட்டி டிவில எனக்கு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை 1/2 மணி நேரம் பேசும்படிக்காக பர்மிஷன் கொடுத்திருக்காரு. सिटी टीवी में एक सप्ताह में थैंक यू, धन्यवाद सर। रोड का जो है ऑलरेडी यहाँ के जितने भी लोग हैं सबका रिक्वेस्ट है, तो हमने जो है ऑलरेडी म्यूनसिपल काउंसिल में पास भी कर दिया। आप सब जानते हैं कि अभी मतलब जो है फिलहाल जो है तो क्वारी का प्रॉब्लम चल रहा है। जैसी क्वारी स्टार्ट होगा तो 2-4 महीने के बाद हम जो है हो सके अगला क्रिसमस से पहले अगर हमको अगर बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे तो ये फुटपाथ को जरूर करने का प्रयास हम करेंगे और बुलाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. I just wanted to pray. கடைசியாக ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த நல்ல நாளுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறேன் கர்த்தாவே. ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த நாளுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறேன். வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களையும் ஆசீர்வதி. வேதனையோடு வந்திருக்கிற மக்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன். ஏமாற்றத்தோடு வந்திருக்கிற மக்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன். வியாதி பலவீனத்தோடு வந்திருக்கிற மக்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன். கடன் பிரச்சனையோடு வந்திருக்கிற மக்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன். வழியில் சரீரத்திலே இருக்கிற மக்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன். வேதனையோடு இருக்கிற மக்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன். குடும்பத்திலே சண்டையும் சச்சரவு இருக்கிற மக்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன். ஒவ்வொரு ஆசீர்வதிங்க தாவே. இந்த வருஷம் ஆண்டவரே பழையவையெல்லாம் மாறி புதியதாய் மாற உதவி செய்யும். எங்களுடைய கூடி வருகின்ற எங்கள் நாளிலே ஆசீர்வதித்துக் கொடுத்ததற்காக ஸ்தோத்திரம். எல்லா துதி கனமாக உமக்கே செலுத்துகிறோம். மீன் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் கேட்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென். थैंक यू। आए हुए आप सबको बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे मारनाता के सारे वॉलंटियर, सारे हेल्पर्स, सबको हम बहुत ही थैंक Thank you.
இப்போயே கிறிஸ்மஸ் ப்ரிப்ரேஷன் நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. மணி நைட்டு 12:30 ஆயிடுச்சு. ஆனால் நாங்கள் ஸ்டார்ஸ்லாம் ஃபிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்.